नमस्कार दोस्तों। इतिहास गवाह है में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने एनालाइज किया कि कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी implemented administrative, political, economic and legal policies to strengthen their economic hold over India as a colony. We looked at the diarchy method, जिसे द्वैध शासन भी कहा गया, implemented by Robert Clive, and the subsequent famine that came in Bengal as the result of the failure of diarchy. That led to We know that led to the Regulating Act of 1773, because the British Parliament realized that although Bengal as a colony was going through this kind of famine, the East India Company officers were getting richer and richer. So British Parliament then thought of exerting more control and having more interference in East India Company's empire in India. Now, in 1772, Warren Hastings came as the Governor General, and because of Regulating Act, he was made the Governor General, and Bombay and Madras governors were supposed to be under him. Um, Warren Hastings also brought the farming method, जिसके अंतर्गत आप को बेसिकली 5 साल के लिए the highest bidder would get the rights of collecting revenue. Later on, it was made into 1 year, and that also was not successful. Warren Hastings also set up for the first time. He went on to codify the legal code by taking help from pandits and ulemas in India. And Warren Hastings was mostly an Orientalist thinker. प्राच्यवाद कहते हैं जिसे, जिसमें ऐसा बोला जाता है कि हम भारत की संस्कृति को वैसा का वैसा ही बना के रखना चाहते हैं, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की हेल्प से हम भारत को वापस से उसकी ग्लोरी पर पहुंचाएंगे. तो Warren Hastings was also a big believer in that, and that's why he tried to keep the legal code aligned to the Indian culture and traditions. Now, in addition to that, he set up a series of civil courts and criminal court, but kept the justice system aligned to Indian tradition, as I said. Um, Now, before we look at the changes made by the next governor, who was Cornwallis, we need to take a look at Pitt's India Act of 1784. And this was because the Regulating Act did not have kind of the impact it was supposed to have. One big reason was there was lack of transportation and communication, modern transportation and communication. So, despite having some kind of interference, like for example, East India Company was supposed to present its fiscal and military status report to British Parliament. This act still did not have the kind of control that British Parliament wanted, and that in addition to that, by 1783, British had lost America as a colony, and now they wanted to completely focus on their hold on India, and that's why Pitt's India Act was brought. Pitt's is named. The act is named after one of the youngest prime ministers of Britain. Um, and under this act, EIC, matlab East India Company, was brought under dual governance. And what does dual governance means? A six-member board of control having members of British Parliament was set up in addition to the court of directors that were elected by the shareholders of East India Company. So एक ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक ग्रुप था 6 मेंबर, एंड एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का ग्रुप था. Also, the Council of Governor General were reduced to 3 members from previous 4 members, and the reason was that in the previous council, these 4 members were constantly aligning with each other and generally against the Governor General, and therefore Governor General used to have tremendous problems passing some of the decisions. Now, 3 member, when it was reduced, so it became easier for Governor General to have more control, and thus it strengthened the position of Governor General. Then the war, diplomatic and fiscal concerns of Bombay and Madras
were brought again under Governor General, but again, like this time around, it was strengthened in terms of the position of Governor General had already strengthened, so it brought more control. Um, Now, the board of control, as I talked about, which was a six-member board of control, became a precursor to the appointment of Secretary of State for India in 1858. And again, the same problems occurred even after Pitt's India Act, which was basically in absence of better modes of communication and geographical distance and transportation being another problem. There was no regular audit of the on-ground activities, while the power of Governor General had increased considerably in India. The next governor, Lord Cornwallis, it came after this act was passed, and in 1784, when Cornwallis came in, he was very much influenced by British superiority and believed that the methods that have worked in Britain will also work in India. He also believed that the rule of law has to be strengthened, and if it is strengthened, it will encourage trade and production and bring prosperity to Bengal and the adjoining areas. ऑल्सो कॉर्नवालिस खुद एक जमींदार थे, तो वो जमींदारी क्लास से आते थे ब्रिटेन में, तो उनका जो ही वॉज बायस टूवर्ड्स strengthening the position of zamindar, and he thought that if the land was completely given or completely put under zamindars, they would increase the revenue because they would want to, bring reforms and bring new farming method, and that's how they can help the company. एक और जो इम्प्रूवमेंट जो कॉर्नवालिस ने किया, उन्होंने जस्टिस सिस्टम पे बहुत काम किया, और पुलिस और सिविल सर्विसेज, उन्होंने काफी अच्छे से पुलिस सिस्टम और सिविल सर्विस सिस्टम सेटअप किया. हम देखेंगे आगे कि क्या किया उसमें. पहले समझते हैं कि लैंड रेवेन्यू, जो कि एक सबसे बड़ा फोकस होता था ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ड्यूरिंग दिस फेज विच वाज द कमर्शियल फेज. इस समय लैंड रेवेन्यू वाज द बिगेस्ट फोकस, एंड in line with that, in 1793, Cornwallis brought permanent settlement. इसे हिंदी में स्थायी बंदोबस्त कहा जाता है. एंड अंडर परमानेंट सेटलमेंट ही पुट जमींदार इन कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द लैंड. अभी एक देखेंगे कि मुगल शासन के समय ये कंट्रोल कैसे हुआ करता था. सो मुगल शासन के समय जमींदार के पास 20% लैंड होती थी, और फार्मर्स जो होते थे उनके पास 80% लैंड होती थी, और इस कारण से जमींदार अपनी 20% लैंड पे जो कुछ करना चाहते थे वो करते थे, और फार्मर्स उन्हें एक समय जाकर वो रेवेन्यू दे देते थे जितना देना होता था, और वो रेवेन्यू कलेक्शन मेथड चलते रहती थी. उसके अलावा जो नॉन फार्म लैंड होती थी, और नाउ व्हाट इज नॉन फार्म लैंड? इट इंक्लूड्स कोई बंजर जमीन, बैरन लैंड, फॉरेस्ट, ग्रेजिंग एंड इरिगेशन लैंड, दैट वाज आल्सो पुट अंडर जमींदार. पहले ये सामुदायिक लैंड होती थी, कम्युनिटी लैंड कहा जाता था, जिसे दोनों लोग यूज कर सकते थे, बट अब ये पूरे पूरे जमींदार के अंडर में डाल दिया था. इस कारण से दूसरा जो एक और चेंज किया, जमींदार को अब पूरी 100% जमीन का ओनर बना दिया. और मुगल टाइम पे जमींदार भूमि के ओनर्स नहीं होते थे, दे वर द ओनर्स, दे वर द ओनर्स of revenue collection rights. So they could pass on the revenue collection rights to someone else. They could divide it amongst their sons and like however their successors, but they did not own the land. Under Cornwallis's new system, now zamindars were the owner, made the owner of entire land, and land could be sold to others. Now, as he brought the Permanent Settlement Act, what he did was he made 1790 the base year, and he said that whatever revenue has been collected from the total land, 10 by 11 of the total 10/11 जो है वो फिक्स्ड कर दिया गया है, और वो गवर्नमेंट को दिया जाएगा. और फिक्स्ड का मतलब
क्या है मैं समझाता हूँ। और जमींदार 1/11 रखेंगे 1790 में। फिक्स्ड का मतलब ये हुआ कि अभी मान लीजिए जमींदार ने जो कम्युनिटी लैंड है उसमें इंप्रूवमेंट करके अपना रेवेन्यू अगर बढ़ा लिया, तो वो रेवेन्यू पूरा का पूरा जमींदार ही रखेंगे। गवर्नमेंट को बस वो 10/11 जो इनिशियल 1790 के बेस ईयर में मिला था, वो लगातार उसी का हिस्सा मिलते रहेगा। एंड what that meant was it encouraged zamindar to make, basically the idea was that it will encourage zamindar to make more improvements. And the idea that Cornwallis had was that anyways the produce, the agriculture produce, was a part of trade, and therefore revenue could be earned on all the improvements that zamindar are making by putting some taxes on the trade. तो इस तरीके की ये एक सोच थी। दिस इज हाउ कॉर्नवालिस थॉट एट दैट टाइम। एंड अब इसमें जो एक बहुत ही दिखती सी बात है कि जमींदार कुड गो ऑन टू इंक्रीज देयर रेवेन्यू by making different improvement, and that actually happened because by 1980 the areas in which permanent settlement was applied, they in completely in total paid 4 crores to government, whereas about 56 crore went to the जमींदार, क्योंकि वो जो अपना 1/11 है वो बढ़ाते गए, और इस तरीके से दे स्टार्टेड अर्निंग वे मोर ऑन द परमानेंट सेटलमेंट। एक और जो बात यहाँ पर देखी जाती है कि हाउ डिड कॉर्नवालिस ensure that zamindars would pay the fixed amount to the collector at the right time. For that, Cornwallis brought in place a sunset law, सूर्यास्त नियम लागू किया गया। और सूर्यास्त नियम के अंतर्गत ऐसा था कि जो ड्यू डेट है उस दिन अगर सूर्यास्त तक वो रेवेन्यू नहीं पहुंचा तो जमींदारी को ऑक्शन कर दिया जाएगा। और सिमिलरली द फार्मर्स वर नाउ पुट इन कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द जमींदार। और ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम खड़ी करेगा, हम देखेंगे आगे चल के। क्योंकि अब पहले फार्मर जहां थोड़े इंडिपेंडेंट थे, अब कंप्लीटली वर अंडर द कंट्रोल ऑफ द जमींदार। रैयत जिसे कहते हैं, रैयत अब जमींदार के अंडर में आ चुकी थी। और उन पे यह रूल लगा दिया कि अगर वो डिफॉल्ट हो गए, डिफॉल्ट करा उन्होंने, तो जमींदार कुड कॉन्फिस्केट देयर एसेट्स, राइट। जमींदार कुड कॉन्फिस्केट देयर मूवेबल एंड इमूवेबल एसेट्स। अच्छा, इसमें एक बहुत ट्रिविया वाली बात यह है कि ये जो परमानेंट सेटलमेंट जो उस समय फिक्स हुआ था 1793 में, ये फाइनली जाके जिन जिन जगहों पर फिक्स हुआ था, बंगाल के जो एरियाज थे जहां ये हुआ था, ये फाइनली जाकर 1954 में जब जमींदारी अबॉलिश हुई, जमींदारी उन्मूलन कानून जो आया, तब जाके ये फाइनली खत्म हुआ। तो ये बहुत लंबे समय तक चला और इस तरीके से चला। Now, Cornwallis thought that by removing the mid-level officers and only keeping the zamindar and collector in the deal, he would be able to remove the corruption. He also thought that zamindar in case of mutiny, ये बहुत एक politically thought move भी था कि मान लीजिए म्यूटिनी होती है कभी, फार्मर म्यूटिनी या ट्राइबल म्यूटिनी या किसी भी तरीका की म्यूटिनी होती है ब्रिटिश कंपनी के अगेंस्ट, तो जमींदार उनके तरफ खड़े रहेंगे। और ये एक्चुअली सही भी प्रूव हुआ, क्योंकि 1857 में जब म्यूटिनी हुई तो जमींदार ऑफ बंगाल completely like kind of stayed passive during that mutiny. He also, as I said before, hoped that zamindar would invest in the land and like it develop the farm. And finally he thought that when if land could be sold, and if zamindar owned, like zamindar becomes the owner of the land, it will encourage the city bankers and traders from the city to invest in the land. Now how did all of this pan out? Now the first obvious chance, like flaw, was that as I said, government lost a tremendous chance to increase land revenue because it was a permanent fixed amount that government would get year on year. दूसरा, ऐसा सोचा था कि ये इससे एडमिनिस्ट्रेटिव हासिल कम होगा बिकॉज नाउ जमींदार एंड कलेक्टर वर द ओनली टू पीपल हु वर द पार्ट ऑफ दिस डील। बट इनिशियली इतने जमींदार
ने डिफॉल्ट किया, इतना सूर्यास्त कानून का उपयोग हुआ, इतनी बार सनसेट लॉ लगाना पड़ा कि बहुत जमींदार वर कॉन्स्टेंटली ऑक्शनिंग देयर जमीन, देयर लैंड एंड जमींदारी, एंड दैट इटसेल्फ बिकेम अ हैसल। दूसरा इसमें क्या हो गया कि जमींदार अपने ही लोगों को खड़ा कर देते थे। तो ऑक्शन में मान लीजिए कहीं पे ऑक्शन हुई, तो जमींदार ही अपने लोगों को वहां पे जाके खड़ा कर देते थे, जो वहां से जमीन वो ऑक्शन में ले लेते थे, और फिर से वो जमींदार ही उस पे हक बना लेते थे। ऑल्सो दूसरी जो एक और चीज थी कि ऑल्दो द लॉयल्टी ऑफ जमींदार was brought, bought by company by giving them this kind of uh, ownership of land, but it made farmers extremely hostile toward company, and there were series of revolts by farmers, starting after permanent settlement well until the Indigo Revolt of 1860. Finally, जो एक होप थी कि बैंकर्स एंड ट्रेडर्स ऑफ द सिटी वुड इन्वेस्ट इन द लैंड इन वंस द लैंड वाज एबल टू बी सोल्ड, वो एकदम गलत निकला। वो गलत इसलिए निकला क्योंकि अगर मान लीजिए लैंड ऑक्शनिंग में सिटी किसी ट्रेडर ने या बैंकर ने खरीद भी ली, तो जमींदार उनको धमकी दे देते थे। जमींदार वो थ्रेटन कि आना तो पड़ेगा तुमको गांव में ही, और गांव जाने की किसी की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि कोई जाए वहां पे तो जमींदार अपने लोग खड़े कर देते थे और वहां डरा धमका के फिर से वो जमीन अपने हक में कर लेते थे। तो ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह हुआ ही नहीं। इसमें इनफैक्ट कुछ उल्टी चीजें हुई। सबसे पहले क्या हुआ कि इट गेव राइज टू समथिंग कॉल्ड सब फ्यूडलिज्म। और व्हाट इज सब फ्यूडलिज्म, अब जैसे इसको ढंग से समझते हैं। इसमें क्या हुआ कि जैसे जमींदार को मान लीजिए 1 लाख रुपए का रेवेन्यू गवर्नमेंट को देना है, तो जमींदार ने क्या करा, अपनी जमीन को 4 हिस्सों में बांट के 4 लोगों को कलेक्शन एजेंट बना दिया, और उनसे बोला कि भाई तुम मुझे 35,000 दे दो। अब 35,000 जब 4 लोग देंगे, तो जमींदार के पास 1,40,000 आ जाएगा। ही वुड पॉकेट द सम ऑफ 40,000, और वो 1 लाख का रेवेन्यू दे देगा, है ना, कलेक्टर को। अब ये जो 35,000 वाले लोग थे, इन्होंने भी अपने अंडर कुछ लोगों को रख लिया। इनको 35,000 चाहिए था, तो इन्होंने भी 4 लोगों को रख लिया मान लीजिए, और उनको कहा कि तुम मुझे 12-12 हजार ला के दो। वो 13,000 अपनी जेब में और 35,000 जमींदार को। वो जो 12-12 हजार कलेक्ट करने वाले थे, उन्होंने भी अपने नीचे। तो इस पूरे सिस्टम में इट गेव राइज टू सब फ्यूडलिज्म, उप सामंतवाद जिसे कहते हैं। सब मतलब उप, फ्यूडलिज्म मतलब सामंतवाद, उप सामंतवाद का जन्म हो गया। And now, because zamindar were earning a good sum of money without even without being concerned about the land, it gave rise to absentee landlordism. Absentee landlordism क्या मतलब क्या है? Because the zamindar were becoming prosperous, they went away from villages and settled in the cities. So the money that the government hold or Cornwallis hold would be invested in the land and in the improvement of farming, was now going into the city and was actually helping the city economy. इन लोगों के बच्चे फिर बाहर पढ़ने निकल जाते थे या अच्छे जगहों पर पढ़ते थे, and all of that things followed. The biggest prize was paid by the lowly farmer. जो फार्मर था वो भयंकर नीचे अब दब गया था, क्योंकि उन पे बहुत ज्यादा रेवेन्यू लगा दिया गया था, और अब उनका यहाँ से बहुत शोषण हुआ। तो ये जो परमानेंट सेटलमेंट था, ये एक तरीके से इतना एक it was so flawed that the board of directors did not let this system expand to any other part of India later on. तो ये हमको बहुत ध्यान रखना है कि क्या हुआ परमानेंट सेटलमेंट में, क्या सोचा था कॉर्नवालिस ने, और उसका एक्चुअल रिजल्ट क्या हुआ। अच्छा, अब आते हैं, ये तो लैंड रेवेन्यू हुआ। अब आते हैं कि ट्रेडिशनल मतलब कॉर्नवालिस ने जस्टिस सिस्टम में क्या चेंजेस करे। उन्होंने, जैसा मैंने कहा, उनको अपने ब्रिटिश सुपीरियोरिटी पे बहुत भरोसा था, और कॉर्नवालिस एक्चुअली ऐसा सोचते थे कि सारे इंडियंस भ्रष्ट होते हैं। तो उन्होंने बहुत सारे यूरोपियन एलिमेंट्स, ही ब्रॉट अ लॉट ऑफ यूरोपियन एलिमेंट्स टू द जस्टिस सिस्टम। One of the biggest achievement of Cornwallis in this regard was that he was able to separate the power. Basically, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी को इसने
स्टेप इसने पहली बार अलग किया 1793 में। इन्होंने कॉर्नवालिस कोड मतलब कॉर्नवालिस संहिता लाया, जिसके अंडर सिविल एंड क्रिमिनल जस्टिस रिस्पॉन्सिबिलिटीज वर टेकन अवे फ्रॉम द कलेक्टर। पहले कलेक्टर के पास ही होती थी, जो रेवेन्यू अधिकारी भी होता था। वही मैं कह रहा हूं, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को अलग अलग कर दिया। And he organized Diwani courts. Ab lowest court was Munsif court that took cases up to 50 rupees. Then above that was registrar court that took up to 200 rupees. Then he set up regional courts in Patna, Murshidabad, Calcutta or Dhaka, which could take cases up to 1000 rupees. And then Sadar Diwani court में सेटअप करे गए। कलकत्ता में सदर दीवानी कोर्ट सेटअप किया गया, और 5,000 रुपए से ज्यादा बड़ा अगर मामला हो तो वो किंग इन काउंसिल के पास जाता था, जो कि लंदन में बैठती थी, है ना। तो कॉर्नवालिस ने क्या करा, उसने ये जुडिशियल सिस्टम को लंदन से कनेक्ट कर दिया, है ना। मैंने जैसे कहा थोड़ा सा यूरोपियन एलिमेंट लाया, तो उन्होंने जुडिशियल सिस्टम को लंदन से कनेक्ट कर दिया। क्रिमिनल जस्टिस में क्या किया उन्होंने, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऊपर 4 सर्किट कोर्ट्स बना दिए। और सर्किट कोर्ट्स क्या थे, दीज वर मूविंग कोर्ट्स, दे यूज्ड टू मूव एंड दे कुड ऑल्सो, ये मृत्युदंड का की सजा भी सुना सकते थे। सर्किट कोर्ट के ऊपर उन्होंने निजामत कोर्ट बनाया और एक सदर निजामत कोर्ट बनाया निजामत कोर्ट के ऊपर। उन्होंने पीनल कोड में भी बदलाव करे। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम, पहले क्या होता था मुगल शासन में, जो तुम्हारी विटनेस होती थी उसके रिलीजन को बहुत तवज्जो दिया जाता था। तो उन्होंने ये थोड़ा सा इसमें से हटा दिया, रिलीजन का अब कोई मतलब महत्व नहीं बचा था। अगर कोई विटनेस है उसके रिलीजन को अब नहीं देखा जाता था। दूसरा, उन्होंने इंटेंट ऑफ द क्राइम पे ज्यादा फोकस किया, न कि मेथड और जो हथियार यूज करा है उस पे। मुगल शासन के समय ऐसा था कि अगर मान लीजिए आपने जो क्राइम करा है, क्राइम अगर क्राइम प्रूव हो गया, तो उसको जो सजा मिलती थी वो पूछ के मिलती थी। मतलब रिश्तेदारों से पूछ के डिसाइड होता था कि इसको किस तरीके, तो जिस तरीके का क्राइम है उसी तरीके की सजा मिलती थी। बट अब ये थोड़ा सा बदल के इंटेंट ऑफ द क्राइम पे ज्यादा फोकस आ गया आफ्टर कॉर्नवालिस चेंज इन द लीगल सिस्टम। Now, one of the biggest things that Cornwallis did was he is credited with the setting up of civil services in India, है ना। और जैसा मैंने बताया उनके हिसाब से सारे इंडियंस भ्रष्ट थे, तो वो चाहते थे कि कोई ऊपर से, जो ब्रिटिश लोग हैं, वो लोग यहाँ पर आकर अधिकारी बने। और just to ensure that they work with integrity, he decided that the salary for civil servants would be rupees 1,500, and they would also get 1% commission in the land revenue. This made that civil services or civil servants one of the highest earning post in the world at that time. और ये बहुत बड़ी बात है, हाँ। और इसका जो अपॉइंटमेंट होता था ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में होता था। और इस कारण से वो अपना ये हक छोड़ना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि वो अपने बेटों को, अपने सगे संबंधियों के बेटों को सिविल सर्वेंट बनाना चाहते थे। यही एक बहुत बड़ा मुद्दा लेटर ऑन नेशनल मूवमेंट जो हुआ, उसमें ये एक बहुत बड़ा इंडियनाइजेशन ऑफ सिविल सर्विसेज वाज वन ऑफ द बिगेस्ट पॉइंट्स एंड एसेंशियल डिमांड ऑफ national movement. Now, finally, under police reforms, police stations were set up by Cornwallis with a daroga as its in charge, and superintendent of police was the post made at the district level by Cornwallis. पहले जो पुलिसिंग थी, जब मुगल शासन का डिक्लाइन हो रहा था, तो पुलिसिंग स्टार्टेड फॉलिंग अंडर जमींदार एंड देयरफॉर वाज एक्सट्रीमली इल मैनेज्ड. This kind of brought, the rule of law and some kind of order when the police stations were set up, and superintendent of police at a district level, that post was created. एक जो समझने की बात है कि इंडियन ईस्ट इंडिया कंपनी को ये बहुत अच्छे से पता था कि देयर वाज अ लैक ऑफ नेशनल फीलिंग इन पीपल। इंडिया छोटे छोटे रीजन्स में एक तरीके से बहुत ज्यादा रीजनलिज्म था। हमें भी पता है, प्रिंसली स्टेट्स थे, राजा थे, सबका अपने अपने रीजनलिज्म के चक्कर में लोग थे। और इसलिए जो लैक ऑफ नेशनल फीलिंग थी,
उसका फायदा ब्रिटिश ने खूब उठाया बाय एम्प्लॉइंग एंड रिक्रूटिंग सोल्जर्स फ्रॉम द इंडियन पॉपुलेशन। दे न्यू कि यहाँ पर जो नमक हलाली का जो एक माहौल है उसके चलते अगर सैलरी दी जाएगी तो ये सोल्जर्स उनके लिए ही काम करेंगे, और इट इंश्योर्ड लॉयल्टी। प्लस इतनी बड़ी आर्मी, इंडिया जैसी जगह को मैनेज करना पूरा, अगर ब्रिटिश सोल्जर से आर्मी बनाना ही बहुत मुश्किल था, क्योंकि ब्रिटेन की खुद की जनसंख्या बहुत कम थी, है ना। तो ये भी एक रीजन था कि आर्मी रिक्रूटमेंट मेजरली इंडिया से किया गया। और यही यहाँ पर हमने अब देखा क्या क्या, आज हमने देखा कि लैंड रेवेन्यू सिस्टम में कॉर्नवालिस ने क्या चेंजेस किए, एडमिनिस्ट्रेशन में क्या चेंजेस किए, जस्टिस सिस्टम में क्या चेंजेस करे, पुलिस में क्या चेंजेस करे, सिविल सर्विसेज में क्या चेंजेस करे, और फाइनली मिलिट्री, जो सैनिक और सेना थी, उसमें किस तरीके की सोच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनाई। आज हम यहीं पर थोड़ा सा पॉज लेंगे। अगले एपिसोड में वी विल एग्जामिन द सोशल एंड कल्चरल पॉलिसी ड्यूरिंग दिस फेज, एज आई सेड कमर्शियल फेज ऑफ कॉलोनाइजेशन। सोशल और कल्चरल पॉलिसी क्या थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, and we will round off this entire policy discussion which we started in the last episode with a broader context of commercial phase of the colonization, ताकि एक बहुत अच्छा सा हमारा एक समरी हो जाएगा नेक्स्ट एपिसोड में। और उसके बाद हम अलग नेक्स्ट फेज पे जाएंगे। ये अभी कमर्शियल फेज है, नेक्स्ट फेज विल बी इंडस्ट्रियल फेज ऑफ कॉलोनाइजेशन। आप लोगों का सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू।